Hey guys, welcome back to my channel and thank you so much for joining me everybody. आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, दिस इज़ द रीडिंग दैट आई हैव ऑलवेज थॉट अबाउट डूइंग. ओके, इवन बिफोर आई डिड सोल पर्पस ऑफ सुशांत एंड अंकिता, आई वॉज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि ये जो हमारी लालची क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इसका क्या सोल पर्पस हो सकता है इस लाइफ में. व्हाट इज़ शी हियर टू लर्न, व्हाट स्पिरिचुअल लेसन शी इज़ हियर टू लर्न. तो आज हम रीडिंग में यही देखने वाले हैं. ठीक है, so I have already set the intention and I will just shuffle it once more and then we will see can, what divine wants us to know on this. Okay, so let's see. Thank you for helping us know anything that you want us to know, anything you want us to know on the spiritual lesson to learn, spiritual lesson that here to listen. Thank you for your divine guidance and blessings coming for all of us here. Anything? Okay. So we have got two cards that's jumped out. Two cards that has jumped out. What is at the back of the deck? We have Three of Pentacles in reverse. Okay, and then what do you have? Seven of Pentacles, that is money thing. Again money. And you have a devil card at the back of the deck. You have High Priestess. This is Ten of Wands in reverse. And this is the Judgment card. Her soul spiritual learning is related with Judgment and Ten of Wands. Okay, यहाँ पे रखती हूँ and I will take the cards here. Seven of Sword. Seven of Sword is a card of deception. It is a card of betrayal, and that is her main soul purpose. That is her main soul purpose. Deception, betrayal, stealing. Four of Swords. Lot of tension. Ace of Sword. Okay. Ace of Sword in reverse. Towards the end of her life, throughout her life, how her soul's purpose will look like, she will be very stressed out. Most of her life she will be very stressed out. A lot of tension because of things that she is hiding in, because उसका जो main card आया है soul purpose का क्या आया है? Deception, betrayal, stealing things, doing everything that is negative, everything that is dark. वो उसका मेन सोल पर्पस आया है. क्यों आया है, वी कैन चेक दैट, बट दिस इज़ अ मेन सोल पर्पस. यानी कि एक आप बोल सकते हैं कि इसका शी विल बी ऑलवेज pulled towards, she will always be inclined towards doing everything negative, be it cheating anybody, be it doing all these drugs, doing anything that is not right, anything that is wrong, on the wrong side, which is on the darker side. She will always be pulled towards that. And we have also seen that how she is involved in drugs and how she is involved in all kind of scams, and of course the whole Sushant thing. तो she is आप बोल सकते हो कि ये इस चीज़ में लिप्त रहेगी और इसको एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहेगा हमेशा ये सब गलत काम करने के लिए. अब ये क्यों रहेगा? इज़ इट कमिंग फ्रॉम हर पास्ट और इज़ इट कमिंग फ्रॉम हर पास्ट लाइफ? दोनों चीज़ें हो सकती हैं.
ओके अब क्या होगा कि जब एक आदमी का सोल पर्पस ये है कि शी विल नेचुरली बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स द डार्कर साइड ऑफ डूइंग थिंग्स, towards the dark side, gray side तो नहीं बोलेंगे, it's more like after Sushant's case it has become more of a dark side, and all everything that is, you know, shady and dubious and not right, anything that doesn't feels right. तो जब आप इस तरह के काम करोगे तो इट्स वेरी नेचुरल कि आप डे टू डे बेसिस पे काफ़ी स्ट्रेसफुल रहोगे, बिकॉज एक चोर की दाढ़ी में जो तिनका रहता है वो हमेशा रहेगा, तो आप क्या रहोगे, आप काफ़ी स्ट्रेसफुल रहोगे हर वक्त। ओके यहाँ पे देखो, शी विल ऑलवेज बी ऑन द वॉच आउट। यहाँ पे देखो ये जो बर्ड है काफ़ी एक चौकन्ना सा होके देख रहा है, विच मीन्स कि शी विल ऑलवेज बी ऑन द लुक आउट फॉर समथिंग, शी विल ऑल्सो बी वेरी यू नो ऑन द टोज कि यार मैं पकड़ी तो ना जाऊँ, या फिर यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वेरी विजिलेंट, वेरी चौकन्ना सा रहने का। द अदर थिंग दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड इज दैट बिकॉज at the back of the deck में क्या आया है, that she is somebody who is working on her, she will always be somebody who is, you know, struggling and working with her um, with her stuffs। माने कि यहाँ पे भी देखो एक आप देख रहे हो कि एक आदमी है जो कि बहुत मेहनत से कुछ कुछ कर रहा है, कुछ काम करने का कोशिश कर रहा है, एक टूटा हुआ बोट है उसको ठीक कर रहा है। तो if you know also her how she has been, she's always been like very, if you minus Sushant from her life, she is actually a nobody, but because of Sushant she got into the whole limelight thing। So basically she is somebody with a absolute zero talent of her own, but because she does all these negative stuffs she manages to be in the limelight and make all the money and all those things। उसके कारण स्ट्रेस में भी रहेगी, और because of her, and she is always struggling with her things, you know, she is not that she is not, because और उसका फोकस देखो क्या है, एक नेगेटिव और एक डार्कनेस की तरफ है। फोकस इज नॉट टूवर्ड्स, यू नो, जैसे सुशांत का फोकस क्या था, हिज पैशन था, उसका ड्रीम्स था। यहाँ पे देखो एक इजी चीज़ में इसका पैशन है, इसका फोकस है। आई मीन शी इज़ नॉट इवन थिंकिंग अबाउट हर ड्रीम्स कि मुझे मेहनत करना है, ये मेरा ड्रीम्स है, मुझे ऐसे पूरा करना है, कुछ नहीं है। बस एक स्टीलिंग, बिट्रेयल, ड्यूबियस स्टफ्स, ये सारी चीज़ें में एक नेचुरल इंक्लिनेशन है इसका। और ये भी देखो दूसरी चीज़ है कि दूसरे जो चीज़ ले रहे हैं उस पर इसकी हमेशा नज़र रहती है, ओके, कि कैसे ये हम ले ले। तो शी इज़ समबडी हु इज़ ऑलवेज, यू नो, आइंग समथिंग और दी अदर, जो कि दूसरे का है और उसको मैं कैसे ले सकती हूँ। तो इस तरह की तरफ, इस चीज़ों की तरफ इसका नेचुरल इंक्लिनेशन है। क्यों नहीं नेचुरल इंक्लिनेशन है, बिकॉज शी हर सेल्फ, अब बोल सकते हैं कि इसका एक तो अपना कोई ड्रीम नहीं है। आई मीन शी हैज़ नॉट बीन, यू नो, गिवन विथ एनी ड्रीम्स। अगर आपने एल्केमिस्ट पढ़ा है तो उसमें पॉल खोलो ने बहुत अच्छे से बोला है कि if you have a big dream in your heart, then take it as a sign from the universe, because it is the universe that is giving birth to that dream in your heart, है ना। तो क्योंकि सुशांत का सोल पर्पस बहुत ही हाई था, हाई लेन का था, तो he was gifted, not only was he inclined and more focused towards his passion and purpose and dreams and building people up, building himself up, और इस तरह का हाई सिद्धांत था उसका। बट इसका इस तरह का कुछ नहीं है। एक आप बोल सकते हो कि एक यू नो एक स्ट्रगल है लाइफ में, और एक यू नो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके सोल पर्पस से, एक स्ट्रगल से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक डार्क सोल आप बोल सकते हैं कि जो काफ़ी एक बैगेज, यस बैगेज है इसके ऊपर। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था जो कि पहले आया था। यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि एक लेबर टाइप का जो इंसान रहता है, जो बोझ का मारा रहता है, तो इसके ऊपर काफ़ी किसी तरह का बहुत बैगेज है। यहाँ पे भी देखो बैगेज है, जैसे कि बिल्कुल you're just not the high lane horse, if you understand what I mean। So when you are not high lane horse, what do? You struggle, and then you try to just pull a stunt from whatever you have, and for that
When you're not working hard and you pull a stunt to be successful, then you will have to do all these things which she is doing, which is something that she will be naturally pulled to do. Because somewhere her she's been very struggling and काफ़ी उस पर बैगेज है और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कार्ड्स में. ओके और यहाँ पे एट द बैक ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स भी अपोजिट में है, यानी कि शी विल, यहाँ पे जो स्ट्रगल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि शी इज स्ट्रगलिंग, शी इज़ नॉट अ हॉर्स ऑफ, एक बोलते हैं ना एक लंबी रेस का घोड़ा रहता है जिसको देख के भी आप बोल सकते हो कि या दिस हॉर्स इज गोइंग टू गो लॉन्ग, क्या नस्ल है, क्या ब्रीड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. बट विथ हर इट्स नथिंग लाइक दैट, यू नो, वेरी वेरी मीडियोकर, बिलो मीडियोकर आप बोल सकते हो. एंड स्ट्रगलिंग विथ मनी, 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पैसे का काफ़ी तंगी है, बैगेज है, लोड है, फोकस भी नहीं है, इस तरह का कुछ इंस्पिरेशन फ्लो नहीं कर रहा है, एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन जो फ्लो करता है बॉडी में वो सब चीज़ नहीं है. तो वो सारी चीज़ें यहाँ से एक काफ़ी बॉटम में है. यहाँ पे बोट है, यहाँ पे हल बोलते हैं ना, वहाँ पे हल पे है ये. तो शी इज़ समबडी हु इज़ लाइक ब्लो. तो यहाँ से वो ऑपरेट कर रही है. तो एक आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आप बोल सकते हैं, एक स्ट्रगल है, सर्वाइव करने का है. एंड देन दिस इज़ दी, और जब आप में टैलेंट नहीं होता या फिर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो एंड यू आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ, then what happens, and you don't want to work hard also because there is no spiritual energy या inspiration to work towards better things, so you get pulled naturally towards all that is a shortcut, deception, betrayal, चोरी, इस तरह की चीज़ें. तो वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया. आई जस्ट होप कि यू कैन गेट व्हाट आई मीन, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. ओके, तो अब क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इसका स्ट्रगल एक्सप्लेन किया, एक स्लगिशनेस है, एक सर्वाइव करने की कोशिश है. अब वहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो तो यहाँ पे आप ड्यूबियस और शेडी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो. एंड देन व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रेस्ड. अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्या है कि तुम किसी के भी इशारे पे नाच सकती हो. You understand, some powerful people can just take you in their hands and they can get you to do anything that they want. तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी करती होगी क्योंकि ये 4 of sword का कार्ड है. तो for her it is very easy to just play to anybody's tune for the sake of money, because मैंने ये मनी का सारा स्ट्रगल आपको एक्सप्लेन किया है. तो उसके कारण काफ़ी स्ट्रेस भी रहेगा. शी विल बी दैट ऑल्सो. अब यहाँ पे टूवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ इसका सोल पर्पस कैसा दिखेगा. इसका सोल पर्पस ऐसा दिखेगा कि एज इफ कि शी इज़ लॉस्ट. यूजुअली आप जब लाइफ में आते हो तो आप यहाँ पे किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आते हो. कोई बैगेज जो हम प्रीवियस लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम आते हैं, एक क्लैरिटी के लिए आते हैं, उसको अचीव करने के लिए आते हैं. लेकिन यहाँ पे जो इसके साथ हो रहा है स्ट्रेसफुल है, यहाँ पे ड्यूबियस है, यहाँ पे स्ट्रगल है, यहाँ पे स्लगिशनेस है. तो यहाँ पे जो भी इसने रास्ता अपनाया है उसके कारण ये ऐसा लग रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ शी विल गेट मोर क्लॉग्ड इन, शी विल गेट मोर सराउंडेड इन फॉग. उसको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल वो रास्ता भूल गई है. शी विल बी लाइक लॉस्ट इन द लैबिरिंथ. इस तरह की चीज़ें उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ हर लाइफ उसकी लाइफ पर्पस लगेगी. शी विल बी डाउन ट्रॉडन. आप देखो यहाँ पे शी विल बी डाउन ट्रॉडन, उल्टा है ये कार्ड. तो शी विल बी डाउन ट्रॉडन एंड इट्स मोर लाइक पीपल विल ऐसा बोलेंगे कि ये देखो उसके जैसा मत बनो या समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, डेविल भी आ गया है. तो डेविल इंटेंशंस एट द बैक ऑफ द डेक, जो कि इसका पूरा ओवरऑल नेगेटिविटी में वो क्यों पुल हो रही है वो चीज़ मैंने बताया आपको. लोग कैसे इसके लाइफ पर्पस को देखेंगे. 5 of cups in reverse.
लोग इसके सोल पर्पस को कैसे देखेंगे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। इनफैक्ट जब मैं शफल कर रही थी, जब मैंने इंटेंशन सेट किया था पहले, तो नाइट ऑफ वॉन्स भी आ गया था। थ्री ऑफ वॉन्स, ओके, यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, यहाँ पे नाइट ऑफ थ्री ऑफ वॉन्स है, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लगेगा कि शी इज़ ऑलवेज चेजिंग मनी। हाउ विल हर लाइफ पर्पस अपीयर टू, हाउ विल शी मूव टूवर्ड्स हर लाइफ पर्पस ऑफ, इसका कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस काफ़ी डार्क है। अब ये क्यों है, आई कॉन्ट रियली टेल यू एट द मोमेंट। इट इज़ कमिंग फ्रॉम हर पास्ट का कर्मा हो सकता है, पास्ट लाइफ कुछ हो सकता है, ओके, बट हर लाइफ पर्पस इज मोर लाइक डूइंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स में लिप्त रहना, इस तरह का इसका लाइफ पर्पस है। एंड यस, तो इस लाइफ पर्पस पे कैसे वो फॉरवर्ड करेगी, मूव करेगी? बाय चेजिंग मनी, बाय चेजिंग मनी। मनी का इसको इतना लालच रहेगा, और मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एक बहुत ही बेसिक लेवल पे ये है, टैलेंट वाइज एंड ऑल दोज थिंग्स, एक स्लगिश जगह पे है वो। एक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जो कि फोरसाइटेड बनाता है, किसी को एक लाइट दिखाता है, उस तरह की कोई चीज़ें नहीं है इसके साथ। तो इसका जो मनी का एक लस्ट रहेगा, वो उसको इस सारी चीज़ों में अपनी तरफ पुल करेगा, यू अंडरस्टैंड? सो बिकॉज शी विल बी सो क्रेजी अबाउट मनी दैट दिस इज हाउ शी विल मूव टूवर्ड्स डूइंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स इन हर लाइफ। ये जो गलत काम करेगी, क्यों करेगी? बिकॉज शी बेसिकली वॉन्ट्स टू मूव अहेड इन हर लाइफ। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि इसका एक स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसका एक इसके सोल, इसका एक स्ट्रगल है यहाँ वहाँ पे, उस तरह की चीज़ें हैं। और उस तरह के हो जहाँ पे आपका होप्स नहीं है, ड्रीम्स नहीं है, पैशन नहीं है, बट मनी चाहिए है आपको, दूसरों की चीज़ें चाहिए है आपको, तो आप आगे बढ़ना है आपको, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो आप क्या करोगे? आप दूसरों की चीज़ों को आई करना स्टार्ट करोगे, दूसरों को आप यूज़ करके आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है? आप देख रहे हो ऐसे करके। सो दिस इज़ हाउ शी विल मूव फॉरवर्ड इन हर लाइफ, ओके। एंड ये सारी चीज़ें इसकी होती रहेंगी, और इसके बीच में क्या होगा, एक थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक आप बोल सकते हो धोखाधड़ी होगा, बिट्रेयल होगा, हर्ट होगा, धोखा देना होगा, इस सारी चीज़ें होंगी। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ एग्जैक्टली कमिंग अपोजिट टू दिस। ये उसका मेन सोल पर्पस है, और इसको कैसे अचीव कर रही है वो, इन दोनों कार्ड्स के थ्रू अचीव कर रही है। फॉर हर लव फॉर मनी एंड टू ग्रो इन हर लाइफ, शी इज़ डूइंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। थ्री ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, बिट्रेयल, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें कर रही है हर, और वो स्लोली इसके तरफ बढ़ रही है। What will really pull her towards doing all the wrong things in her life and getting involved in all the dark world? It will come from her life not being very smooth, her life being a constant struggle, uh, for her want of better things in life. एक चीज़ जो लाउडली आ रहा है काज से, वो ये है, जैसे बोलते हैं ना कि पैर, चादर देख के पैर फैलाओ, बट दिस पर्सन हैज़ सम, इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन कोई दूसरा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, वो सब में इसे बहुत इंटरेस्ट है, बट बिकॉज ऑफ माइनस दी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, जो कि हमें इंस्पायर करता है अपने लिए मेहनत करके वो चीज़ अचीव करने के लिए, वो चीज़ नहीं है इसमें।
तो एक जो स्ट्रगल वाला लाइफ है कि हाई लेन नहीं है और आप लंबी रेस के घोड़े भी नहीं होते हो, इतना प्रॉमिसिंग भी नहीं हो, बैगेज है किसी तरह का पीछे जन्म का, एंड स्टिल यू हैव बिग ड्रीम्स, तो आप क्या करते हो, अपने घोड़े को बहुत ज़्यादा दौड़ाते हो, माने कि यू वांट दिस ऑल्सो, यू वांट दैट ऑल्सो, दोनों तरफ एक दिमाग इधर है एक दिमाग उधर है, माने कि यू वांट लॉट ऑफ थिंग्स, अ वेरी स्कैटर्ड एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। एंड इसको ये आप अपना चैरियट कहाँ लेके जाओगे, कहीं भी लेके जाओगे। यहाँ पे देखो चैरियट इसका आउट ऑफ कंट्रोल है, माने कि अपनी जो इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है, पैर चादर देख के पैर फैलाना नहीं है, दूसरों की चीज़ें देखना है, दूसरों की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, बट समहाउ उसके लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है कि मेहनत कर सकते हैं, ड्रीम कर सकते हैं, इट फिट, आई विल वर्क फॉर इट इवन इफ इट टेक्स टाइम, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप अपने चैरियट को फुल एक्सलरेटर दे के कहीं भी घुमाते हो, यहाँ जा रहा है तो यहाँ मिल जाए कुछ तो यहाँ भी, यहाँ मिल जाए कुछ तो यहाँ भी। और जैसे मैंने बोला था आपको कि anybody can just because of a lust for money and material things, anybody can take her in control and she will dance to their tunes, okay, जिसके कारण इसका स्ट्रेस तो डेफिनेटली रहेगा। अब इस तरह के आप नेगेटिविटी में इन्वॉल्व रहोगे तो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग रहेगी, यू विल बी इन स्ट्रेस, यू विल बी इन द शैडो ऑफ समथिंग, यू विल बी इन द यू नो, एक चीज़ का डर के साये में आप रहोगे, अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। और ये तो उसका जो इच्छा है, जो सब चीज़ है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए, ये उसका लस्ट है, दैट इज़ स्क्रीमिंग आउट लाउड। तो यहाँ से सारा चीज़ ओरिजिनेट हो रहा है, विच इज़ गोइंग टू दिस डिसेप्शन। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे करके मैच हो रहा है। तो आदमी को अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, बट शी हैज़ लेट हर इच्छा, जो मन बोलते हैं ना, मन एक रथ की तरह होता है, यू हैव टू कंट्रोल द कमांड ऑफ योर मन। लेकिन इस लड़की ने अपना मन को ही छोड़ दिया है, बिल्कुल जो चाहिए तुम करो। अब टैलेंट नहीं है तो अब क्या करोगे, आप वो सारी चीज़ें करोगे जो मैंने बताया। ऑल राइट, अब ये चलो देख लेते हैं कि इसकी स्पिरिचुअल, what is she here to learn, what are her spiritual lessons in this life, what are her lessons in her life। wow, surrender to what is, मतलब जो है हाँ ठीक है, माने कि सही है गलत है, दूसरों को धोखा देना है, क्या ये सही है, नहीं, जो भी है ठीक है, सरेंडर टू व्हाट इज़, मेरा काम बन रहा है ना, मुझे मेरी जो ज़रूरत है वो तो पूरी हो रही है ना, दैट इज़ ऑल आई केयर फॉर। बाकी दुनिया बाहर में जाए, मैं अगर ड्रग्स बेच के मुझे पैसा मिलता है तो मैं वो करूँगी, दूसरों को मार के अगर मुझे पैसा मिलेगा तो वो करूँगी, किसी को बिट्रे करके जिसने मुझ पर बहुत भरोसा किया है तभी मुझे अगर पैसा मिलेगा तो भी मैं वो करूँगी, मैंने कि कम वॉट एवर इट इज़, ओके।